ہم کابل کی حکومت کے ساتھ کسی معاملے میں الجھنا نہیں چاہتے. ہم ایک امن کی بات کر رہے ہیں اور ہم تمام جو اخوان گروہ ہیں ہم ان کے ساتھ رابطے میں ہیں اور ہم اس رابطے کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں. پاکستان کا کردار اس وقت پوری دنیا دیکھ رہی ہے. ہم امن کے لیے کھڑے ہیں, ہم تلخیاں کم کرنے کے لیے کھڑے ہیں اور ہماری یہی پالیسی. وفاقی کابینہ کا افغانستان کی صورتحال پر اظہار تشویش, تشدد کے خاتمے اور پرامن افغانستان کے خواہاں ہیں. یوم شہداء کشمیر کے موقع پر شہداء کے درجات کی بلندی کے لیے خصوصی دعا. حالیہ مانسون سیزن میں 50 کروڑ پودے لگانے کا ہدف. وزیر اعظم عمران خان کی اسلام آباد میں گرین ایریاز کا تحفظ یقینی بنانے کی ہدایت. تحریک لیبیک پر پابندی برقرار رکھنے کا فیصلہ. عید الاضحیٰ کے موقع پر 20 سے 22 جولائی تک تعطیلات کا اعلان. افغانستان کی بدلتی صورتحال پر گہری نظر ہے. بین الاقوامی برادری افغان مہاجرین کے مسئلے پر پاکستان کا ساتھ دے. سعودی عرب عید پر 85 پاکستانی قیدیوں کو رہا کرے گا. دیگر ملکوں میں قید پاکستانیوں کی رہائی کے لیے بھی اقدامات کر رہے ہیں. آزاد کشمیر انتخابات میں تحریک انصاف کی پوزیشن بڑی مضبوط ہے. وزیر اطلاعات چودھری فواد حسین کی میڈیا بریفنگ. We managed to save precious lives and at the same time livelihoods. I appreciate the international recognition of our pandemic containment strategy and our ASAS social protection program. Universal and affordable access to COVID-19 vaccine is essential to defeat the virus and to revive global trade, investment and growth. دنیا کو سہجہتی غیر معمولی صورتحال کا سامنا ہے. کورونا وبا, معاشی ترقی کی زبوں حالی اور موسمیاتی تبدیلی جیسے خطرات لاحق ہیں. غریب ممالک کے لیے درکار مالیاتی ریلیف بہت کم ہے. ترقی یافتہ ملک اور عالمی مالیاتی ادارے اس سلسلے میں کم از کم 150 ارب ڈالرز مختص کریں. وزیر اعظم کا اقوام متحدہ کے اعلیٰ سطح پولیٹیکل فورم سے خطاب. الزام تراشی کسی فریق یا خطے کے مفاد میں نہیں. افغان امن عمل میں پاکستان کے مثبت کردار کو جھٹلایا نہیں جا سکتا. باہمی مذاکرات کے ذریعے افغان مسئلے کا جلد سیاسی حل نکالا جائے. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی دوشنبے میں افغان ہم منصب محمد حنیف اتمر سے گفتگو. افغانستان میں طالبان کی پیش قدمی جاری. غور, ہرات, قندھار, ہلمند, فرا, بامیان اور لغمان کے کئی علاقوں میں طالبان کا قبضہ. بڑے پیمانے پر جانی نقصان کی اطلاعات. درجنوں افغانی فوجیوں نے ہتھیار ڈال دیے. ٹینکوں اور 7 بختربند گاڑیوں سمیت بہت بڑی تعداد میں بھاری اسلحہ قبضے میں لے لیا گیا. دنیا بھر میں مقیم کشمیریوں نے یوم شہداء کشمیر اس عزم کی تجدید کے ساتھ منایا کہ وہ حق خود ارادیت کے حصول تک اپنی جدوجہد آزادی جاری رکھیں گے. مقبوضہ کشمیر میں مکمل ہڑتال. مظاہرہ شہداء کی طرف مارچ کرنے کو روکنے کے لیے سری نگر میں کرفیو نافذ. دنیا بھر میں مظلوم کشمیریوں کی حمایت میں ریلیاں اور سیمینارز کا انعقاد. کشمیر کی آزادی کا سورج جلد طلوع ہوگا. غیر قانونی بھارتی قبضے کے خلاف کشمیری عوام کی جدوجہد ضرور کامیاب ہوگی. پاکستان کشمیریوں کی آزادی تک سفارتی, سیاسی اور اخلاقی مدد فراہم کرتا رہے گا. صدر مملکت اور وزیر اعظم کا یوم شہداء کشمیر پر شہداء کو خراج عقیدت. سیکیورٹی فورسز کا ضلع کرم کے علاقے زیوا میں آپریشن. 3 دہشت گرد ہلاک. فائرنگ کے تبادلے میں کیپٹن باسط اور سپاہی حضرت بلال شہید. دہشت گردوں کی تلاش کے لیے علاقے میں آپریشن جاری. ISPR. ملک میں 2 کروڑ افراد کو کورونا ویکسین لگانے کا سنگ میل عبور. 15 جولائی سے بین الاقوامی فلائٹ آپریشن میں 50% اضافے کا فیصلہ. 1 اگست سے اندرون ملک ہوائی سفر کے لیے ویکسینیشن لازمی قرار. سیاحتی مقامات کے راستوں پر سخت چیکنگ کی ہدایت. SOPs پر عمل درآمد کے لیے آرمی سے مدد لینے کا فیصلہ.
मुल्क में कोरोना का फैलाव, मुस्बत केसेस की शरह 3.6%। 24 घंटे के दौरान 1590 नए केसेस रिपोर्ट, 21 अफराद जाँ बहक। SOPs की खिलाफ वर्जी पर इस्लामाबाद, मुल्तान, पेशावर, गुजरांवाला में क्रैकडाउन। इराक़ी अस्पताल के कोरोना वार्ड में आतिशज़दगी। नासरिया के अस्पताल में आग से 64 अफराद लुकमा अजल बन गए, दर्जनों जख्मी। गुज़श्ता 3 माह के दौरान अस्पताल में आग लगने का यह दूसरा वाक़या है। वार्ड में ऑक्सीजन सिलेंडर का फटना आग लगने की वजह बना, मीडिया रिपोर्ट्स। मुल्क के बेशतर इलाकों में तूफानी बारिशें, नशेबी इलाके ज़ेरे आब। खैबर पख्तूनख्वा में मुख्तलिफ हादसात में 3 बच्चों समेत 4 अफराद जाँ बहक। महकमा मौसमियात की कश्मीर, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान, बलूचिस्तान और सिंध में मजीद बारिशों की पेशगोई। और बर्मिंघम में तीसरा और आखिरी वनडे मैच, पाकिस्तान का इंग्लैंड को 332 रन का हदफ। कप्तान बाबर आजम की शानदार सेंचुरी, मोहम्मद रिजवान के 74 और इमामुल हक के 56 रन। मैच PTV स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। Pulled away by Rizwan. अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ अली जन्नत। मैं हूं आसमा इकबाल और खेल की खबरें लिए मैं हूंगा आपके साथ समी इकबाल। नाज़रीन, न्यूज़ हेडलाइंस अब जान चुके हैं, इन खबरों की तफसील जानिएगा एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। जी बेटा। अब्बू, वो मैं आज आपके MCB बर्क रफ्तार अकाउंट में पैसे भेज दूंगा। MCB बर्क रफ्तार के साथ अपनों की हर जरूरत पूरी करें फौरन। MCB बर्क रफ्तार, फौरन से फौरी। MCB बैंक फॉर लाइफ। खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे वफाकी काबीना की, जिसने अफगानिस्तान की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार करते हुए वाज़ेह किया कि पाकिस्तान तसादुम का खात्मा चाहता है और अफगानिस्तान को पुरअमन देखने का ख्वाह है। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत काबीना के इजलास में कोरोना की सूरत हाल का जायजा लिया गया। वफाकी काबीना ने तहरीक लबैक पाकिस्तान पर पाबंदी का फैसला बरकरार रखा है। तफसील जान लेते हैं हारून इलाही तौर से। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना ने कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सिंध की दरख्वास्त पर उनके खिलाफ सिंध हुकूमत की जानब से कायम मुकदमात की शफाफ और गैर जानबदाराना तहकीकात के लिए मुश्तरका तहकीकाती टीम के क़याम की मंजूरी दी। काबीना ने ड्रग प्राइसिंग कमेटी की सिफारिशात पर 49 अद्वियात की रिटेल प्राइस मुकर्रर करने की भी मंजूरी दी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने सऊदी अरब की जानब से ईद उल अज़हा पर 85 पाकिस्तानी कैदियों की रहाई पर सऊदी हुकूमत का शुक्रिया अदा करते हुए हदायत की कि इनकी वापसी के लिए ख़ुसूसी त्यारा भिजवाया जाए। साफ और सरसब्ज़ो शादाब पाकिस्तान के विजन के तहत वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि हुकूमत हालिया मानसून के दौरान मुल्क की तारीख की सबसे बड़ी शजरकारी मुहिम शुरू करेगी। वज़ीर आज़म ने वफाकी दारुल हुकूमत की बढ़ती हुई आबादी और फैलाव पर तशवीश का इजहार करते हुए इस मसले पर फौरी तवज्जो देने की जरूरत पर जोर दिया। वफाकी काबीना को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और आई वोटिंग के हवाले से अब तक की पेशरफ्त पर ब्रीफिंग दी गई। इजलास में यौम शोहदाए कश्मीर के मौके पर शोहदाए कश्मीर के दर्जात की बुलंदी के लिए खुसूसी दुआ की गई। मीडिया ब्रीफिंग में इत्तलात व नशरियात के वफाकी वजीर चौधरी फवाद हुसैन ने कहा कि अफगानिस्तान के मामले पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है, दुनिया मसले की हसासियत का इदराक करे। पाकिस्तान अफगानिस्तान की बदलती सूरत हाल के ऊपर नज़र रखे हुए है। पाकिस्तान का मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह, हम काबुल की हुकूमत के साथ किसी मामले में उलझना नहीं चाहते। हम एक अमन की बात कर रहे हैं और हम तमाम जो अफगान गिरोह हैं हम उनके साथ राब्ते में हैं और हम उस राब्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं। और तलखियाँ जो हैं वो पैदा करना आसान होता है, आपस में तलखियों को हल करना मुश्किल होता है। पाकिस्तान का किरदार इस वक्त पूरी दुनिया देख रही है। हम अमन के लिए खड़े हैं, हम तलखियाँ कम करने के लिए खड़े हैं और हमारी यही पॉलिसी रही। पहले ही 3 मिलियन के करीब अफगान महाजरीन यहाँ पर हैं और दुनिया को ये चाहिए कि वो बजाय इसके कि वो अफगान महाजरीन के ऊपर तादाद पे प्रेडिक्शंस करती फिरे, वो ये करें कि पाकिस्तान के साथ खड़े हों और इस मसले के ऊपर पाकिस्तान को एक बहुत कंसर्न है।
ہمیں بڑی تشویش ہے جس طریقے سے افغانستان میں حالات خراب ہو رہے ہیں. ہم اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں کہ افغانستان میں ایسے حالات پیدا نہ ہوں کہ جس کی وجہ سے خدا نخواستہ افغان شہریوں کو وہاں سے مہاجرت کرنی پڑے. آزاد جموں کشمیر انتخابات پر وزیر اطلاعات نے واضح کیا کہ تحریک انصاف کی پوزیشن بڑی مضبوط ہے. کشمیر کا الیکشن الحمدللہ کافی حد تک پی ٹی آئی کے لیے بہت اچھا ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی تک دیکھیے بلاول بھٹو صاحب تو مایوس ہو کے امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور انہوں نے اپنی کیمپین بھی دیکھ لی ہے. 8-9 کینڈیڈیٹ سے زیادہ ان کے پاس کینڈیڈیٹس نہیں ہیں. اسی طرح سے مریم بی بی نے جس طرح سے کل کہا کہ وہ الیکشن کیمپین کرنے نہیں، وہ تو کشمیر کی سیر کرنے آئی تھی، تو وہ کشمیر کی سیر مکمل ہو گئی ہے. اب مریم بی بی بھی واپس انشاءاللہ اپنے گھر پہ بیٹھیں گی اور بلاول صاحب بھی گھر پہ بیٹھیں گے اور دونوں اپنے والدین کے کمائے ہوئے پیسوں پہ عیش کریں گے. چودھری فواد حسین نے کہا کہ کورونا ویکسینیشن کا عمل مؤثر انداز میں آگے بڑھ رہا ہے. عوام اس سلسلے میں ذمہ داری کا مظاہرہ کریں. اب تک 2 کروڑ لوگ جو ہیں ویکسینیشن کرا چکے ہیں. کل اس حوالے سے این سی او سی ایک جامع رپورٹ بھی اپنی جو ہے وہ دے گی. کراچی اور خیبر پختونخوا میں جو کیسز ہیں وہ بڑے ہیں. پنجاب میں صورتحال کنٹرول میں ہے. دنیا بھر میں تقریباً جو ہے وہ 1.5 ارب لوگ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ ویکسینیشن لگوا چکے ہیں. لہٰذا آپ سازشی تھیوریوں کے اوپر کان نہ دھریں. کابینہ نے اس امر پہ زور دیا ہے ماسک کی پابندی کریں، اجتماعات اور رش والی جگہوں سے حد المقدور اجتناب کریں. جو پروٹوکولز ہیں اس کے سلسلے میں جو ابتدائی رپورٹ پیش ہوئی ہے وفاقی کابینہ سے زیادہ پروٹوکول جو تھی وہ سابقہ ہماری جو حکمران ہیں اپوزیشن کے لیڈرز کے پاس اور جو بیوروکریٹس ہیں ان کے پاس تھے. فیصلہ یہ کیا گیا ہے اس میں کہ اگلے ہفتے میں ایک جامع رپورٹ جو ہے وہ وزیر اعظم صاحب کے سامنے لائی جائے گی. جو سٹینڈرڈز ہیں ان کو ریویو کیا جا رہا ہے، قوانین کو ریویو کیا جا رہا ہے اور اس کو ریشنلائز کیا جائے گا. وزیر اطلاعات نے کہا کہ وفاقی کابینہ کے اجلاس میں تحریک لبیک کی نظر ثانی درخواست پر غور کے لیے قائم کمیٹی کی رپورٹ پیش کی گئی. کابینہ کو بتایا گیا کہ تنظیم پر پابندی کا فیصلہ میرٹ اور حقائق پر کیا گیا جس پر کابینہ نے اسے برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا. ہارون الہی طور، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد. وزیر اعظم عمران خان نے واضح کیا ہے کہ پائیدار ترقی کے اہداف اور موسمیاتی تبدیلی کے چیلنجز سے نمٹے بغیر عالمی معیشت مستحکم نہیں ہو سکتی. پائیدار ترقی پر اقوام متحدہ کے اعلیٰ سطح سیاسی فورم سے ورچوئل خطاب میں وزیر اعظم نے کہا کہ غریب ملکوں کے لیے درکار مالیاتی ریلیف بہت کم ہے. ترقی یافتہ ملک اور عالمی مالیاتی ادارے اس سلسلے میں کم از کم $150 ارب مختص کریں. اسی کی تفصیل جانیں گے آغا مسعود خالد سے. اقوام متحدہ کے زیر اہتمام اعلیٰ سطح پولیٹیکل فورم سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ دنیا کو اس وقت سہجہتی غیر معمولی صورتحال کا سامنا ہے جس میں کرونا وبا، معاشی ترقی کی زبوحالی اور موسمیاتی تبدیلی کے باعث لاحق خطرات شامل ہیں. Through our policies of smart lockdowns and focus on the disadvantaged, we have been able to somehow contain the virus. We managed to save precious lives and at the same time livelihoods. I appreciate the international recognition of our pandemic containment strategy and our Asas social protection program. We are now making all possible efforts to accelerate our vaccination campaign. Unfortunately, the COVID-19 pandemic revealed and accentuated the endemic inequalities which exist within and amongst nations. وزیر اعظم نے کہا کہ عالمی معیشت اس وقت تک مستحکم نہیں ہو سکتی جب تک تمام ممالک بشمول امیر اور غریب اس قابل ہو جائیں کہ وہ پائیدار ترقی کے اہداف اور موسمیاتی تبدیلی کے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے سرمایہ کاری کی رفتار کو تیز کر سکیں. Universal and affordable access to COVID-19 vaccine is essential to defeat the virus and to revive global trade, investment and growth. The world must ramp up vaccine production, including in the developing countries, and ensure its rapid distribution. While the support offered by some major nations is commendable, more needs to be done. 4 نکاتی تجاویز پیش کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ ترقی پذیر ممالک کو کورونا کی صورتحال سے باہر نکالنے کے لیے مناسب مالی امداد کو متحرک کرنا ہوگا. I welcome the agreement to create $650 billion in new SDRs. Yet the additional reserves created for the poorest countries will not provide anywhere close to
the magnitude of the financial relief they require. Similarly, fulfillment of the commitment made by developed countries to provide $100 billion per year in climate finance is vital. Pakistan's landmark projects such as our Recharge Initiative and 10 billion tree tsunami project can benefit greatly from such support. वज़ीर आज़म ने कहा कि तरक्की पजीर ममालिक से बड़ी मिकदार में बाहर भिजवाई जाने वाली गैर कानूनी रकूम को रोकना होगा और उनके चोरी शुदा असासे गैर मशरूत तौर पर वापस किए जाने चाहिए. The vast amounts of illicit finance which flow out of the developing countries must be halted. Their stolen assets should be returned unconditionally. The 14 recommendations of the FACT-I panel deserve to be endorsed and implemented. वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि हमें तनाज़ात के पुरअमन और मुनसिफाना हल पर तवज्जो देनी होगी और ज़्यादा मसावी, मुस्तहकम और खुशहाल दुनिया की तामीर के लिए बैनुल अक़वामी ताउन को फ़रोग़ देना होगा. आगा मसूद खालिद, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, इस्लामाबाद. और नाज़रीन, दुशंबे में SCO वज़राए ख़ारिजा काउंसिल इजलास के मौके पर वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी और अफ़गान वज़ीर ख़ारिजा मोहम्मद हनीफ अतमर के दरमियान मुलाकात हुई, जिसमें अफ़गानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल और आइंदा के लाहे अमल पर तबादला ख्याल हुआ. वज़ीर ख़ारिजा ने पाकिस्तान की जानिब से पुरअमन अफ़गानिस्तान के लिए मुस्तकिल हिमायत का यकीन दिलाते हुए तशद्दुद में इजाफे पर तशवीश का इजहार किया. उन्होंने कहा कि पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में कमी लाने और जंगबंदी के लिए फौरी इक़दामात की ज़रूरत है. शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि मनफी बयानात से अफगान अमन अमल में पाकिस्तान के मस्बत किरदार को झुठलाया नहीं जा सकता. इल्ज़ाम तराशी किसी फरीक या खित्ते के मफाद में नहीं है. वज़ीर ख़ारजा ने अफगान हम मनसब पर जोर दिया कि बाहमी उमूर पर गुफ्तगू और तयशुदा लाहे अमल को बरूए कार लाना चाहिए. उन्होंने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मौजूदा मुश्तरका मैकेनिज़्म से मुताल्लिक़ इजलास के जल्द इनेकाद की ख्वाहिश का इजहार किया. वज़ीर ख़ारजा ने अफगान क़यादत पर जोर दिया कि गैर मुल्की अफवाज के इनखला के तनाजुर में मुज़ाकरात के ज़रिए मसले का जल्द सियासी हल निकालें ताकि मुस्तकबिल और देरपा क़याम अमन के हवाले से राह हमवार हो सके. शाह महमूद कुरैशी ने इस अज़्म का इयादा किया कि पाकिस्तान खित्ते की तरक्की, अमन और रवाबित के फ़रोग़ के लिए पुरअमन और मुस्तहकम अफ़गानिस्तान की भरपूर हिमायत जारी रखेगा. अफगानिस्तान से अमरीकी फ़ौज की रवानगी और तालिबान की मुसलसल पेशकदमी के बाद काबुल इंतज़ामिया का मुल्क पर कंट्रोल तेज़ी से ख़त्म होने लगा है. तालिबान ने गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान गौर, हेरात, कंधार, हिलमंद, फरा, बामियान और लकमान समेत कई सूबों में बड़े इलाकों का कंट्रोल संभाल लिया है. गैर मुल्की ज़राए इब्लाग के मुताबिक तालिबान ने सुबह हिलमंद के सदर मकाम लश्करगाह में फ़ौजी छावनी पर कब्जा कर लिया है. हमले में 39 एहलकार हलाक और 14 जख्मी हो गए. जंगजुओं ने 14 टैंक और 7 बख्तरबंद गाड़ियों समेत बहुत बड़ी तादाद में भारी असलहा कब्जे में ले लिया. आपको बताएं कि इस मौके पर ज़िले इंतज़ामी सरबराह और पुलिस चीफ कमांडर समेत 100 सरकर्दा हुकाम और एहलकार असलहे समेत तालिबान के साथ शामिल हो गए. तालिबान ने बामियान और लगवान सूबों में भी बड़े हमले किए. ज़ेगान और कंदक अजला के मराकज़, पुलिस हेडक्वार्टर, चौकियों समेत तमाम सिविल और फौजी तनसीबात पर कब्जा कर लिया. तालिबान ने कंधार के ज़िलों अरगंदाब और डंड, जबकि सूबा हेरात के ज़िला और स्कन के वसी इलाके भी फतह कर लिए हैं. नाज़रीन, अफगानिस्तान में अमेरिकी फ़ौज के कमांडर जनरल ऑस्टन मुलर इंतहाई खामोशी के साथ वापस अमेरिका रवाना हो गए हैं और इसके बाद अफगानिस्तान में 20 साल तक जारी रहने वाला गैर मुल्की फ़ौजी तसल्लुत अपने अंजाम को पहुँच गया. काबुल से वाशिंगटन रवाना होते वक्त एक मुख्तसर तकरीब में फ़ौजियों से खिताब करते हुए जनरल मिलर ने अफगान अवाम के खिलाफ जंग में मारे जाने वाले 2500 अमरीकी फ़ौजियों को खिराज अक़ीदत पेश किया. नाज़रीन, सिक्योरिटी फोर्सेस का ज़िला करम के इलाके ज़ेवा में दहशत गर्दों की मौजूदगी की इतला पर ऑपरेशन ISPR के मुताबिक ऑपरेशन में 3 दहशतगर्द मारे गए. फायरिंग के तबादले में पाक फ़ौज के कैप्टन बासित और सिपाही हज़रत बिलाल शहीद हो गए. 25 साला कैप्टन बासित शहीद का ताल्लुक हरीपुर से है. 22 साला सिपाही हज़रत बिलाल शहीद का ताल्लुक औरकज़ई से है. सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को घेरे में लेकर दहशतगर्दों की तलाश शुरू कर दी है. और अब कुछ बात करेंगे मकबूजा जम्मू कश्मीर की. आपको बताएं कि कंट्रोल लाइन के दोनों तरफ और दुनिया भर में मुकीम कश्मीरियों ने यौम शहदा इस अज़्म की तजदीद के साथ मनाया कि वह हक़ खुद इरादियत के हुसूल तक अपनी जदोजहद आज़ादी जारी रखेंगे. कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक इस मौके पर मकबूजा रियासत में मुकम्मल हड़ताल की गई, जबकि काबिज़ इंतज़ामिया ने भारत मुखालिफ मुजाहिरों और मज़ार शहदा नक्शबंद साहब की जानिब मार्च को रोकने के लिए श्रीनगर में कर्फ्यू नाफिज किए रखा. इस मार्च को रोकने के लिए लाल चौक श्रीनगर में रुकावटें खड़ी की गई थी, जबकि काबिज़ फ़ौज की भारी नफरी भी तैनात की गई थी. पुलिस और खुफिया एजेंसियों के एहलकार हड़ताल करने वाले ताजिरों और दुकानदारों का दिन भर ताक़ुब करते रहे. भारतीय फोर्सेस श्रीनगर लाल चौक में राहगीरों से उनके नाम पूछती रहीं.
कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस, हुर्रियत रहनुमाओं और तंजीमों ने जुलाई 1931 के शहदा को ज़बरदस्त खराज अक़ीदत पेश करते हुए कहा कि कश्मीर की तारीख में 13 जुलाई जैसे कत्लेआम के 20 सानेहात के बावजूद जिदोजहद आज़ादी अब फैसला कुन मरहले में दाखिल हो चुकी है। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने हक़ खुद इरादत की मुसलसल सियासी, सिफारती और इखलाकी हिमायत जारी रखने पर पाकिस्तान की हुकूमत और आवाम का शुक्रिया अदा किया। श्रीनगर और वादी के मुख्तलिफ इलाकों में आज़ादी और शहदा के हक़ में पोस्टर्स लगाए गए। हुर्रियत रहनुमाओं के मुख्तलिफ वफूद ने बाज़ार शहदा जाकर शहदा के बुलंदी दर्जात के लिए दुआ की। जम्मू कश्मीर साल्वेशन मूवमेंट की ख़वातीन शाख ने श्रीनगर में दुआया तकरीब का अहतमाम किया। शहदा को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए आज़ाद कश्मीर, पाकिस्तान, न्यूयॉर्क और पेरिस समेत दुनिया भर के अहम दारुल-हुकूमतों और शहरों में रैलियाँ और सेमिनार्स मुनक़्क़िद किए गए। न्यूयॉर्क के तारीखी टाइम्स स्क्वायर में पुरअमन एहतजाजी मार्च किया गया। वाशिंगटन में कायम वर्ल्ड कश्मीर अवेयरनेस फोरम के ज़ेरे एहतमाम मुनक़्क़िदा मार्च में सैकड़ों लोगों ने शिरकत की। पेरिस में भी जम्मू कश्मीर फोरम, फ्रांस के ज़ेरे एहतमाम तकरीब में बुरहान वानी और 13 जुलाई के शहदा को खराज अक़ीदत पेश किया गया। कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस के ज़ेरे एहतमाम वर्ल्ड मुस्लिम कांग्रेस के ताउन से मुनक़्क़िदा वेबिनार में मकबूजा जम्मू कश्मीर में इंसानी हुकूक़ के अलमबरदारों, सहाफ़ियों और सियासी कारकुनों के खिलाफ काले क़वानीन के वहशियाना इस्तेमाल पर शदीद तशवीश ज़ाहिर की गई। नाज़रीन, 13 जुलाई 1931 को कश्मीरियों की आज़ादी की जदोजहद की तारीख में अहम दिन है जब डोगरा फौज ने पुरअमन लोगों पर फायरिंग की। नाज़रीन, इस दिन 22 कश्मीरियों ने अपनी जान का नजराना पेश करके आज़ान मुकम्मल की थी। इसी दिन के हवाले से आपको दिखाएंगे चौधरी मजहर की रिपोर्ट। 13 जुलाई 1931 को 22 कश्मीरियों ने इस्लाम के फरीज़ा अज़ान को मुकम्मल करके जाम शहादत नोश किया था। इस वाक़या ने कश्मीरियों के दिलों में जिस हुर्रियत पसंदी के जज्बे को जन्म दिया, भारत ने इस जदोजहद को दबाने के लिए सफाकियत और मजालिम के पहाड़ तोड़ दिए, लेकिन कश्मीरियों का आज़ादी के लिए जज्बा मांद नहीं पड़ा। इसने कश्मीर के अंदर बेदारी की एक लहर उठाई। कश्मीर के सियासी और समाजी जो मंजरनामा था उसको उस पर ऊपर गहरे असरात मरतब किए। उन्हें इस बात की हिम्मत और जुर्रत दी कि वो महाराजा हरी सिंह की हुकूमत के खिलाफ मज़ामत करें। ये वादी कश्मीर में पहला एक ऐसा वाक़ा था जिसने कश्मीर के अंदर एक सियासी शऊर को बेदार किया। उसके बाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का वजूद में आया। उसके बाद उस वक़्त पूरे हिंदुस्तान में ऑल इंडिया कश्मीर कमेटी बनी। महाराजा डोगरा के दौर से जारी भारतीय कब्जे और जुल्म बर्बरियत के खिलाफ कश्मीरियों की जद्दोजहद मज़ाहमत कुर्बानियों की तारीख में बदल चुकी है। नस्ल दर नस्ल आज़ादी के लिए जाने कुर्बान करने वाले कश्मीरी आज भी जुर्रतमंदी से हिंदुत्व की बालादस्ती के खिलाफ जद्दोजहद कर रहे हैं। मकबूजा कश्मीर के अंदर डोगरा राज ने जो अज़ान की सदा को रोकने की नाकाम कोशिश की थी, मौजूदा नरेंद्र मोदी की इंतहा पसंद जनूनी हुकूमत भी ख्वाह कुछ भी कर ले, वो भी इसको दबाने में मुकम्मल तौर पर ना सिर्फ नाकाम है बल्कि नाकाम ही और नामुराद रहेगी। इस्लाम से लाजवाल मोहब्बत और कुर्बानी के जज्बे से सरशार कश्मीरियों की तहरीक आज़ादी ने दुनिया में कुर्बानियों की एक अनोखी मिसाल कायम की है, लेकिन आलमी कुव्वतों ने इनके तस्लीम शुदा मुतालबे के बावजूद मुजरमाना खामोशी इख्तियार कर रखी है। ज़रूरत इस अमर की है कि इंसानी हकूक़ के अलमबरदार कश्मीरियों पर ढाए जाने वाले भारतीय मुजालिम के खिलाफ ना सिर्फ ढाल बन जाएं बल्कि उन्हें उनका हक दिलवाने में अपना किरदार अदा करें। चौधरी मजहर, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, इस्लामाबाद। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी और वज़ीर आज़म इमरान खान ने हक़ खुद इरादियत के लिए मुनसिफाना जद्दोजहद में मसरूफ़ कश्मीरियों को खिराज तहसीन पेश किया है। यौम शहादा पर अपने पैगाम में सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि कश्मीर की आज़ादी का सूरज जल्द तुलू होगा और हम ये दिन ज़रूर देखेंगे। उन्होंने कहा कि गैर कानूनी भारतीय कब्जे के खिलाफ कश्मीरी अवाम की बेलौस जद्दोजहद ज़रूर कामयाब होगी। सदर मुमलिकत ने अपने कश्मीरी भाइयों और बहनों को सलाम पेश करते हुए कहा कि 13 जुलाई 1931 के शहदा की रूह को उनके जानशी जिंदा रखे हुए हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान कश्मीरियों की आज़ादी तक सिफारती, सियासी और कानूनी मदद फराहम करता रहेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने पैगाम में कहा कि कश्मीरी अवाम की मज़ाहमत के जज्बे को शिकस्त नहीं दी जा सकती। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक कश्मीरी अवाम को हक़ खुद इरादत मिलने तक किसी किस्म का समझौता नहीं करेगा। यौम शहदाए कश्मीर पर अपने पैगाम में वज़ीर आज़म ने कहा कि भारत के गैर कानूनी तसल्लुत और जुल्म के खिलाफ कश्मीरी अवाम की जदोजहद, मज़ाहमत और कुर्बानियों की तारीख से इबारत है। पाकिस्तान कश्मीरियों की जदोजहद में उनके साथ है। वज़ीर इत्तला चौधरी फवाद हुसैन ने अपने पैगाम में कहा कि कुरान की
عزت و حرمت اور جبر کے خلاف کلمہ حق کہنے والے شہداء کو سلام پیش کرتے ہیں۔ اپنے ٹویٹ میں وزیر اطلاعات نے کہا کہ 22 کشمیریوں کو صرف اس لیے شہید کر دیا گیا کہ انہوں نے جابر حکمرانوں کے سامنے کلمہ حق کہا تھا۔ یہ دن جموں کشمیر کے عوام کی بے مثال بہادری کی یاد دلاتا ہے۔ اسلام آباد میں بھارتی ہائی کمیشن کے باہر کل جماعتی حریت کانفرنس آزاد کشمیر شاہ کے زیر اہتمام احتجاجی مظاہرہ ہوا۔ مظاہرین نے آزادی کے حق اور بھارتی مظالم کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔ مقررین نے کہا کہ 13 جولائی تحریک آزادی کشمیر میں اہم سنگ میل ہے۔ کشمیری آزادی کے لیے کسی بھی قربانی سے گریز نہیں کریں گے۔ انہوں نے عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم کا نوٹس لے۔ اور شہدائے کشمیر کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے انٹرنیشنل فورم فار جسٹس اینڈ ہیومن رائٹس کی کال پر مظفر آباد میں ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ شرکاء نے 13 جولائی کو شہداء کو شاندار الفاظ میں خراج عقیدت پیش کیا۔ مقررین نے کہا کہ 13 جولائی کا دن جموں کشمیر کی تاریخ میں سنہری حروف میں لکھا جا چکا ہے۔ بھارت کے تمام تر مظالم کے باوجود کشمیریوں کی تحریک کامیابی سے ہمکنار ہوگی۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی نے پاکستان اور بوسنیا ہرزیگووینا کے درمیان معیشت، تجارت، ثقافت اور سیاحت کے شعبوں میں تعاون کو وسعت دینے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ اسلام آباد میں نامزد سفیر ریٹائرڈ میجر جنرل اختر جمیل راؤ سے گفتگو کرتے ہوئے صدر مملکت نے کہا کہ پاکستان باہمی دلچسپی کے تمام شعبوں میں بوسنیا کے ساتھ تعاون کو مزید فروغ دینا چاہتا ہے۔ انہوں نے ہدایت کی کہ نامزد سفیر بوسنیا اور ہرزیگووینا کے ساتھ موجودہ معاشی تعلقات کو مزید بہتر بنانے کے لیے کام کریں۔ صدر مملکت نے پاکستانی کمیونٹی کی فلاح اور مسائل کو حل کرنے کے لیے اقدامات کرنے کی بھی ہدایت کی۔ صدر مملکت کی صدارت میں تمام وفاقی محتسبوں کا اجلاس اسلام آباد میں ہوا۔ محتسب صاحبان نے صدر مملکت کو اپنے اپنے ادارے کی کارکردگی پر بریفنگ دی۔ صدر مملکت نے کہا کہ جدید ٹیکنالوجی، موجودہ قوانین میں ترامیم اور اداروں کا دائرہ کار بڑھا کر کارکردگی میں بہتری لانے کی ضرورت ہے۔ تمام محتسب انتظامی ناانصافیوں کے خلاف عوامی حقوق کے تحفظ کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ انہوں نے کہا کہ وفاقی محتسبوں کا دائرہ کار دور دراز علاقوں تک بڑھانے کی ضرورت ہے۔ صدر مملکت نے عوام کو تیز اور سستے انصاف کی فراہمی پر تمام محتسب صاحبان کی کارکردگی کو سراہا۔ ناظرین، حکومت کی جانب سے ایکسپورٹرز کو امارات کی فراہمی سے ملکی برآمدات میں اضافہ ہوا ہے اور رواں سال آم کی برآمد میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی کہتے ہیں کہ فصلوں کی پیداوار بڑھا کر غذائی تحفظ یقینی بنایا جا سکتا ہے۔ ان کا مزید کیا کہنا تھا، اکرام اللہ محسود بتائیں گے۔ ایوان صدر اسلام آباد میں مینگو فیسٹیول کی تقریب سے خطاب میں صدر ڈاکٹر عارف الوی نے کہا کہ پاکستانی آم کا ذائقہ دنیا بھر میں مقبول ہے۔ رواں سال 37 ملکوں کو آم برآمد کر رہے ہیں۔ صدر مملکت نے کہا کہ مختلف اقدامات کے ذریعے پاکستانی آم کو دنیا بھر میں متعارف کرایا جا سکتا ہے۔ آم کا مزہ، یہ میرے ملک کا پھل اگر دنیا کے بادشاہوں کے پاس یا صدور کے پاس یا پرائم منسٹرز کے پاس جائے تو ایک انٹروڈکشن ہوگا میرے ملک کا، اور اس سے پاکستان کا ایک خوبصورت تعارف شروع ہوتا ہے۔ جب ہم اپنے لوگوں کو فوڈ آئٹمز کے اعتبار سے مہنگائی پر قابو رکھیں گے، جب اپنا پروڈکشن بڑھے گا تبھی مہنگائی پر قابو آتا ہے۔ تجارت کے پارلیمانی سیکرٹری عالیہ امزہ ملک نے کہا کہ حکومت زرعی اجناس اور بالخصوص آم کے فروغ کے لیے ٹھوس اقدامات کر رہی ہے۔ تقریب سے ایوان ہائے صنعت و تجارت اسلام آباد کے عبدالرؤوف اور ایوان ہائے صنعت و تجارت رحیمیہ خان کے صدر بشیر احمد خواجہ نے بھی خطاب کیا۔ اس موقع پر صدر ڈاکٹر عارف الوی نے مختلف اقسام کے آموں کے فیسٹیول کا افتتاح کیا۔ وزارت تجارت اور ایوان صنعت و تجارت رحیمیہ خان کے اشتراک سے منعقدہ اس فیسٹیول میں مختلف فروٹ فارمز کے علاوہ خیرپور، حیدرآباد، ٹنڈو آلایار اور شکارپور کے ایوان صنعت و تجارت نے سٹالز سجائے ہوئے تھے۔ پھلوں کے بادشاہ آم کے اس طرح کے فیسٹیولز کے انعقاد سے مقامی مارکیٹ کے ساتھ عالمی منڈیوں میں بھی آم کے برآمدات کو فروغ ملے گا۔ اکرام اللہ محسود، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ رپورٹ آپ نے دیکھی۔ ابھی آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم عمران خان سے چیئرمین وابڈا مزمل حسین نے اسلام آباد میں ملاقات کی۔ انہوں نے وزیر اعظم کو وابڈا کے تحت جاری 10 بڑے منصوبوں پر پیش رفت سے آگاہ کیا۔ وزیر اعظم نے منصوبوں کی رفتار پر اطمینان کا اظہار کیا ہے۔
नाज़रीन, पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के वज़राए ख़ारजा ने दो तरफ़ा ताल्लुक़ात पर इत्मीनान का इजहार करते हुए ज़मीनी और हवाई रवाबित के फ़रोग़ और तवानाई मनसूबों को जल्द पाया तकमील तक पहुँचाने का अज़्म का इआदा किया है। दुशंबे में वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी और उज़्बेक वज़ीर ख़ारजा अब्दुल अज़ीज़ कामिलोव के दरमियान मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुक़ात और मुख्तलिफ शुबों में ताउन के फ़रोग़ पर गुफ्तगू हुई। दोनों वज़राए ख़ारजा ने SCO समेत बैनुल-अक़वामी फ़ोरम्स पर ताउन को खुशाइंद करार देते हुए इसे मज़ीद मुस्तहकम बनाने के लिए मुश्तरका कोशिशें बरूए कार लाने की ज़रूरत पर जोर दिया। मुलाकात में अफगानिस्तान की बदलती सूरत हाल और क़याम अमन के लिए पाकिस्तान के मसालियाना किरदार पर भी गुफ्तगू हुई। उज़्बेक वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान की काविशों को सराहा। नाज़रीन, वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि आज दुनिया एक अहम मोड़ पर खड़ी है, हमें अपने बड़े मकासद के लिए मुश्तरका कोशिशें करना होंगी। गैर वाबस्ता ममालिक की तहरीक के वर्चुअल वज़ारती इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि दरीना तनाज़ात, अदम मसावात, मौसमियाती तब्दीलियों और इस्लामोफोबिया समेत मुतादिद चैलेंजेस आलमी अमन और तरक्की की राह में हायल रुकावटें हैं। मसाइल पर काबू पाने की खातिर फैसला कुन इक़दामात नेम तंजीम के किरदार को फ़ाल बनाना होगा। The non-aligned movement has a proud legacy of upholding an international system based on principles and objectives of the UN United Nations Charter. The movement has remained in the vanguard to strengthen multilateralism and solidarity for advancing the common goal of sustained peace and development. जुडिशल कमीशन ने बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जमाल खान मंदोखेल को सुप्रीम कोर्ट का जज मुकर्रर करने की सिफारिश की है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान गुलजार अहमद की सरबराही में इस्लामाबाद में होने वाले कमीशन के इजलास में सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस, वजीर कानून और बार के नुमाइंदों ने शिरकत की। इजलास में सिंध हाई कोर्ट के जज जस्टिस मोहम्मद अली मजहर को सुप्रीम कोर्ट का जज मुकर्रर करने पर भी गौर किया गया, ताहम कमीशन ने इजलास की कार्रवाई मौखर कर दी। और अब कुछ बात करेंगे 25 जुलाई को होने वाले आज़ाद कश्मीर के आम इंतखाबात की, जिनके लिए सरगर्मियों में बहुत तेजी आ चुकी है। इसी हवाले से देखते हैं अदील अहमद खान की रिपोर्ट। आज़ाद कश्मीर की तकरीबन 80% आबादी अब भी देही इलाकों में आबाद है। यही वजह है कि आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात करीब आते ही देही इलाकों में भी सियासी सरगर्मियां और गहमा गहमी बामे उरूज को पहुंच जाती है। असल सियासत जो हो रही होती है वो देही इलाकों में हो रही होती है, जहाँ पे रात को ग्रुप बैठ जाते हैं, नौजवान आपस में बैठ जाते हैं, बुज़ुर्ग आपस में बैठ जाते हैं और वो इस पे डिस्कस करते हैं और अपने महल्ले की अपनी ज़रूरियात को और पूरे कश्मीर को, पूरे हलके को वो आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं। देही इलाकों में भी उम्मीदवारों की सियासी मुहिम जोरों पर है। जा बजा इंतखाबी दफातर खुल गए हैं, पार्टी परचमों, बैनर्स और पोस्टर्स की बहार है। अवाम ने अपनी सियासी वाबस्तगी के इजहार के लिए अपने पसंदीदा उम्मीदवारों के पोस्टर्स और सियासी जमातों के परचम अपनी गाड़ियों पर भी लगा रखे हैं। आज़ाद कश्मीर के इंतखाबी अमल में यहाँ के देही इलाकों के अवाम की भरपूर दिलचस्पी इनके बाशऊर होने का सबूत है। अदील अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, वादी लीपा, जिला जहलम वैली, आज़ाद कश्मीर। वज़ीर मवासिलात मुराद सईद ने कहा है कि आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात में तहरीक इंसाफ भारी अक्सरियत से कामयाब होगी। बाग और फॉरवर्ड कोहोटा में अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मुखालिफिन वक्त से पहले ही धांधली का रोना रो रहे हैं। वफाकी वजीर का कहना था कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने दुनिया भर में कश्मीरियों की वकालत की है। पाकिस्तान की तारीख में एक ऐसा वज़ीर आज़म आया जिसने कहा कि मैं कश्मीर का सफीर बनूंगा। पहली दफा कोई वज़ीर आज़म कश्मीर का सफीर बन के अक़वाम मुत्तहिदा जाते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की ऐवान में आज़ाद कश्मीर का पैगाम गूंजता है, आलम इस्लाम का पैगाम गूंजता है, दुनिया के हर फोरम पे कश्मीर का पैगाम गूंजता है। दुनिया की आंखों में आंखें डाल के कश्मीर का मुकदमा लड़ा जाता है। बल्कि इससे बढ़कर पहली दफा पाकिस्तान की वज़ीर आज़म ने कूटनी में अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए कहा कि मकबूजा कश्मीर और आज़ाद कश्मीर की तकदीर का फैसला कोई और नहीं करेगा, ये कश्मीर ही करेंगे, कश्मीर उनका फैसला करेंगे। इस मौके पर वफाकी वजीर उमूर कश्मीर अली अमीन गंडापुर ने कहा कि आज़ाद कश्मीर के अवाम इलेक्शन में जो भी फैसला करेंगे हम उनका साथ देंगे। उन्होंने कहा कि कौमी दौलत लूटने वालों को जवाब देना होगा। उन्होंने पाकिस्तान के अंदर जो लूटमार की, जो करप्शन की और जो रिकॉर्ड तोड़े करप्शन के और हमारे मुल्क को मकरूज किया, आज उन्हीं
उन्हीं के हवारी यहाँ पे गुप्ते करके उन्होंने आपके बच्चों को उसी तरह खून चूसा और यहाँ पे करप्शन करके आपका इस्तेमाल किया। इसकी वजह ये है कि आज मैं जहाँ पे जा रहा हूँ लोग एक बात करते हैं कि हमारा BHU नहीं है, हमारे सेहत की सहूलियात नहीं है, हमारी तालीम की सहूलियात नहीं है। तो मेरे भाइयों, आज आपके पास वोट की एक ताकत है और इस ताकत को आपने इस्तेमाल करना है अपने आने वाली नस्लों के लिए। अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए सरदार तनवीर इलियास ने कहा कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने आज़ाद कश्मीर के आवाम को मायूस किया। PTI इलेक्शन में कामयाब होगी और महरूमियों का खात्मा करेगी। नासिर मोमिन खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून में इख्तलाफात बढ़ रहे हैं। मरियम नवाज और शहबाज शरीफ के दरमियान दूरियां अब छुपने वाली नहीं। अपने वीडियो बयान में उन्होंने कहा कि आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून के पास उम्मीदवार ही नहीं है। मरियम सफदर की तमाम तर इल्ज़ाम तराशियों के बावजूद तहरीक इंसाफ कामयाब होगी। 8, 10, 12 उम्मीदवार है आप में जो असल आपके उम्मीदवार है, बाकी तो आपने इधर उधर से पकड़े हैं क्योंकि कोई आपसे टिकट तक नहीं लेना। तो मरियम सफदर साहबा जितना आपने जोर लगाना लगा लीजिए, कश्मीर में 5 साल हुकूमत आपकी रही है, हिसाब आपने देना है। 5 साल में आपने दूध की नहरें कौन सी बहाई है? हमने हिसाब AP का दिया, वहाँ से 2/3 मेजोरिटी मिली। हमने अब पंजाब का हिसाब देना है, अल्लाह के करम से उसका भी देंगे। और अब कश्मीर में हुकूमत बनाएंगे GB की तरह, जैसे आप वहाँ भी गारंटी बरसती थी और आखिर पे क्या हुआ? फेलियर। अब कश्मीर में भी होगा। कश्मीर में आपको हुकूमत बनाकर इस दफ़ा वाकई कश्मीरियों को कुछ डिलीवर करके दिखाएंगे। नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन ने मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की मुबैना फॉरेन फंडिंग से मुतालिक स्क्रूटनी कमेटी से रिपोर्ट तलब कर ली है। इलेक्शन कमीशन के 3 रुकनी बेंच ने वज़ीर मुमलिकत फ़र्रुख हबीब की दरख्वास्त पर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के अकाउंट्स तक रसाई, तहकीकात और जाँच पड़ताल के मामले की समाअत की है। फ़र्रुख हबीब के वकील ने इस मौके पर यह मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हमें भी फॉरेन फंडिंग स्क्रूटनी में यकसा मौक़े फराहम किए जाएँ। अकबर इसबाबर को रिकॉर्ड तक रसाई की जो सहूलत दी गई है वो हमें भी दी जाए। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर मुमलिकत इत्तलात फ़र्रुख हबीब ने कहा कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी आईनी इदारों को हिसाब क्यों नहीं देते कि उनके अकाउंट्स में करोड़ों रुपए कहाँ से आए। 2017 से ये केस चल रहा है और नून लीग अपनी अकाउंट्स के अंदर आए गए पैसे का कोई रिकॉर्ड जमा नहीं करवा सकी। अब 12 अकाउंट्स नून लीग छुपा रही है, 7 बैंक अकाउंट्स पीपल्स पार्टी छुपा रही है। तो ये क्या माजरा है? क्या यहाँ भी कोई जाली अकाउंट्स का मामला है कि इनकी तारीख है कि ये फॉरेन फंडिंग लेते रहे हैं? कश्मीर के शहदा को भी जो है वो खराज तहसीन पेश करना चाहते हैं। कुछ बहरूपिये आजकल कश्मीर के दौरे के ऊपर हैं, जिन्होंने कभी ख्वाब के अंदर भी कश्मीर नहीं गए होंगे। ये तो वो लोग हैं जो अपनी शादी के ऊपर मोदी को दावत दे के बुला लेते हैं। लेकिन उस वक्त मैं पूछना चाहता हूँ ये मरियम सफदर से कि कश्मीर की आज़ादी का दर्द कहाँ जाता है? मोदी को खुश करने के लिए हुर्रियत रहनुमाओं को नहीं मिलते। और नाज़रीन, कौमी असम्बली का इजलास डिप्टी स्पीकर कासिम खान सूरी की सदारत में हुआ। डिप्टी स्पीकर ने ऐवान में वज़रा और मुतालिका वजारतों के पार्लिमानी सेक्रेटरीज़ की अदम मौजूदगी का नोटिस लेते हुए रोलिंग डे के वफाकी वज़रा और पार्लिमानी सेक्रेटरीज़ ऐवान में अपनी मौजूदगी को यकीनी बनाएं। पार्लिमानी उमूर के वज़ीर मुमलिकत अली मोहम्मद खान ने इस मौके पर कहा कि आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन हम सब के लिए अहम है। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन कमीशन शफाफ और आज़ादाना इंतखाबात के लिए इकदाम कर रहा है। उन्होंने कहा कि कश्मीर का सौदा कोई नहीं कर सकता। मुनासिब यह है कि एक दूसरे पर गद्दारी के फतवे न लगाए जाएं। तवज्जो दिलाओ नोटिस पर पार्लिमानी सेक्रेटरी सालिह मोहम्मद खान ने बताया कि दरियाओं में पानी के बहाव में बेहतरी आने के बाद एसा ने सूबों को 10% इजाफी पानी की फराहमी शुरू कर दी है। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा को उनके हिस्से का पूरा पानी दिया जा रहा है। नुक्ता एतराज़ पर मुस्लिम लीग नून के खुर्रम दस्त खान ने ईवान में यौम शहदाए कश्मीर पर इज़हार ख्याल करते हुए कश्मीरियों से पाकिस्तानी अवाम की जानिब से मुकम्मल यकजहती का इजहार किया। एहसानुल्लाह रेगी ने ईवान में तंजानिया में 17 साल से कैद 19 पाकिस्तानियों का मामला उठाया। डिप्टी स्पीकर ने मामला मुतल्लिका कायमा कमेटी को भिजवा दिया। इजलास में निजी कार्रवाई के दिन मुख्तलिफ अराकीन की तरफ से पेश किए गए 11 बिल मुतल्लिका कायमा कमेटीज़ को भिजवा दिए गए। कौमी असम्बली का इजलास सुबह 11 बजे तक मुलतवी हो गया। सेनेट में इजहार ख्याल करते हुए वज़ीर रेलवे आज़म खान सवाती ने कहा है कि गुज़श्ता हुकूमतों ने इदारों को तबाह किया है। घोटकी हादसे की शफाफ तहकीकात होंगी। इस इजलास की तफसील जान लेते हैं नमूद मुस्लिम से। ऐवान बाला में घोटकी में होने वाले रेलवे हादसे में 66 कीमती जानों के ज़िया और मुतअद्दिद जख्मी होने वाले मुसाफिरों से मुतल्लिक अपोजिशन के तवज्जो दिलाओ नोटिस के जवाब में वज़ीर रेलवे आज़म खान सवाती ने कहा कि साबका हुकूमतों ने PIA और OGDCL की तरह रेलवे में भी हजारों मुलाजमिन भर्ती किए और इसे तबाह किया।
वज़ीर-ए-आज़म की हदायत पर रेलवे को बिजनेस मॉडल तर्ज पर मुंतकिल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि रेलवे से 400 मुलाजमीन को सरप्लस पोल में भेज दिया गया है और रेलवे से काली भेड़ें अलग करके मुनाफा बख्श अदारा बनाना चाहते हैं। नशावर अशिया की मुमानियत का दूसरा तमीमी बिल ऐवान में पेश किया गया, जिसे चेयरमैन सेनेट ने कायमा कमेटी के सुपुर्द कर दिया। सेनेट में कायदे ऐवान डॉक्टर शहजाद वसीम ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने बलोचिस्तान की महरूमियत दूर करने के लिए ठोस इक़दाम किए हैं। वफाकी हुकूमत बलोचिस्तान में 731 अरब के मनसूबों पर काम कर रही है, जो बलोचिस्तान की अशराफिया के बजाय अवाम के लिए हैं। वक्फा सवालात में वज़रा की अदम मौजूदगी पर चेयरमैन सेनेट ने कहा कि इस हवाले से वो वज़ीर-ए-आज़म को खत लिखेंगे, जबकि अपोजिशन ने इस पर अलामती वॉकआउट भी किया। वक्फा सवालात में वज़ीर तवानाई हमाद अज़हर ने बताया कि कराची के शहरियों की जरूरत बढ़ने और इन्हें लोड शेडिंग से बचाने के लिए के इलेक्ट्रिक को 550 मेगावाट अज़ाफ़ी बिजली दी जा रही है। पार्लिमानी अमूर के वज़ीर ममलिकत अली मोहम्मद खान ने बताया कि मौजूदा हुकूमत ने ताजर बरादरी के लिए बिजनेस फ्रेंडली बजट दिया है, जिसकी बड़ी मिसाल फैसलाबाद की 4000 बंद पावर लूम्स की बहाली है। वज़ीर इंसानी हकूक डॉक्टर शीरी मज़ारी ने बताया कि चेयरपर्सन नेशनल कमीशन ऑफ ह्यूमन राइट्स की तैनाती का मामला पार्लिमानी कमेटी के पास है। चाहते हैं इस मामले को हमेशा के लिए हल करने के लिए कानून साजी की जाए। नमूद मुस्लिम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। थैंक यू। और नाज़रीन, खबरनामे में अभी आपको बताएं कि SOPs पर अमल दरामद में कमी और भारतीय किस्म के वायरस डेल्टा के बायस पाकिस्तान में कोरोना के केसेस में बतदरीज इजाफा देखने में आ रहा है। गुज़श्ता 24 घंटों की बात करें तो इस दौरान मुल्क में कोरोना वायरस के मुस्बत केसेस की शरह 3.63% रही है, जबकि 1509 अफराद में कोरोना वायरस की तशख़ीस हुई। वबा से मजीद 21 अफराद जान की बाजी हार गए और इस तरह हलाकतों की मजमूई तादाद 22,618 हो गई है। गुज़श्ता रोज़ 43,790 अफराद के टेस्ट किए गए। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर का इस्लामाबाद में इजलास हुआ, जिसमें अहम फैसले किए गए। इजलास को बताया गया कि पाकिस्तान ने 2 करोड़ से ज़ायद वैक्सीन डोजेस लगाने का संग-मील अबूर कर लिया है। गुज़श्ता रोज़ 5,25,000 से ज़ायद अफराद को वैक्सीन लगाई गई। NCOC ने बैरून मुल्क फंसे पाकिस्तानियों की वतन वापसी के लिए भी इक़दाम तेज़ कर दिए हैं। 15 जुलाई से बैनुल-अक़वामी फ़्लाइट ऑपरेशन में 50% इजाफे का फैसला किया गया है, जिसके बाद रोज़ाना की बुनियाद पर 2500 से 3000 अफराद पाकिस्तान आ सकेंगे। इस ज़िम्न में तमाम एयरपोर्ट्स और मुतल्लिका इदारों को ज़रूरी इक़दाम करने की हिदायत की गई है। 1 अगस्त से अंदरून मुल्क हवाई सफ़र के लिए भी वैक्सीनेशन लाजमी करार दे दी गई है। तमाम सयाहती मकामात पर जाने वाले अफराद के लिए वैक्सीनेशन ज़रूरी होगी। ईद की छुट्टियों के दौरान सयाहती मकामात की तरफ जाने वाले तमाम रास्तों पर सख्त चेकिंग की हिदायत जारी कर दी गई हैं। कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल दरामद के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारों बशमूल पाकिस्तान आर्मी से मदद लेने का भी फैसला किया गया है। दूसरी जानिब कोरोना वबा के फैलाव को रोकने के लिए मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन जारी है। SOPs की खिलाफ वर्जी पर इस्लामाबाद, मुल्तान, पेशावर और गुजरांवाला में इंतजामिया ने क्रैकडाउन किया और खिलाफ वर्जी पर मुतादिद होटल्स को सील कर दिया। नाज़रीन, दुनिया भर में कोरोना वायरस पर बड़ी हद तक काबू पा लिया गया था, मगर भारत से जन्म लेने वाला इंतहाई मौलिक वेरिएंट डेल्टा के तेज़ी से फैलाव के बाद दुनिया के कई ममालिक में एक बार फिर पाबंदियां नाफिज कर दी गई हैं। भारतीय वायरस कई ममालिक में फैल चुका है और आलमी सतह पर मामूल पर आने वाली ज़िंदगी को एक बार फिर मुतासिर होने का खदशा है। आपको ये भी बताएं कि इस वबा से अब तक 40,59,000 हलाकतें हो चुकी हैं, जबकि 18 करोड़ 84 लाख मुतासिर अफराद में से 17 करोड़ 22 लाख सेहतयाब हो चुके हैं। भारत में 4,10,000 अफराद मौत की वादी में उतर चुके हैं, जबकि मुतासिर होने वाले 3 करोड़ 10 लाख अफराद में से 4,35,000 अब भी जिंदगी और मौत की कशमकश में मुब्तला हैं। रूस में एक बार फिर वबा ने शिद्दत इख्तियार कर ली है और गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान रिकॉर्ड 780 अफराद हलाक हुए हैं। 25,000 के करीब नए केसेस भी सामने आए हैं। कुछ मज़ीद खबरें शामिल करते हुए रुख करेंगे जनूबी इराक का, जहां के शहर नासरिया के एक अस्पताल के कोरोना आइसोलेशन सेंटर में आग लगने से कम अज़ कम 64 अफराद हलाक और 70 से ज़ायद जख्मी हो गए, जिनमें से बेशतर की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। इतलात के मुताबिक आग अस्पताल के ऐसे हिस्से में लगी जो कोरोना से मुतासरा मरीजों को अलग रखने के लिए बनाया गया था। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन से चीन के सफ़ीर नोंग रोंग ने इस्लामाबाद में मुलाकात की और मुख्तलिफ उमूर पर गुफ्तगू की है। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि इक़्तिसादी राहदारी से ख़ित्ते में माशी खुशहाली के नए दौर का आगाज़ होगा। जॉइंट कोऑर्डिनेशन कमेटी के तहत तवानाई और सनती ताउन समेत मजमूई इक़्तिसादी तरक्की के शोबों पर तवज्जो दी जा रही है। और वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन से मुआविन ख़ुसूसी नवाबज़ादा शाहज़ैन बुगटी ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि बलूचिस्तान की तरक्की हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। सूबे में नौजवानों को रोजगार के बेहतर मौके फराहम करने के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि CPEC चीन के बेल्ट एंड रोड मनसूबे का फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है, जिसके तहत बलूचिस्तान की समाजी और इक़्तिसादी तरक्की पर भरपूर तवज्जो मरकूज़ है। हुकूमत ने बलूचिस्तान में सड़कों, आबाशी, तालीम, सेहत, ज़राई और सनती तरक्की के बड़े मनसूबे शुरू किए हैं।
اسلام آباد میں UNDP کے زیر اہتمام ویبینار سے خطاب کرتے ہوئے وزیر منصوبہ بندی اسد عمر نے کہا ہے کہ حکومت مختلف شعبوں میں روزگار کے مواقع پیدا کرنے اور معاشرتی عدم مساوات کے خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ انہوں نے کہا کہ احساس پروگرام، صحت کارڈ اور کامیاب جوان پروگرام پسماندہ خاندانوں کی بحالی میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ اسد عمر نے کہا کہ حکومتی پالیسیوں کی وجہ سے IT سیکٹر کی برآمدات میں 46% اضافہ دیکھا گیا ہے۔ اور ناظرین، 30 جون کو ختم ہونے والے مالی سال میں ترسیلات زر میں ریکارڈ اضافہ ہوا ہے۔ گزشتہ مالی سال کے دوران ترسیلات زر 29 ارب 40 کروڑ ڈالر رہے ہیں۔ تفصیل دیکھتے ہیں ذیشان احمد سے۔ بیرون ممالک مقیم پاکستانیوں نے گزشتہ مالی سال میں ریکارڈ ترسیلات زر یہ رپورٹ آگے چل کے خبرنامے میں علیم شیئر کر رہے ہوں گے اپنے دیکھنے والوں سے۔ کچھ آگے بڑھتے ہیں اور اب بات کر لیتے ہیں اقتصادی راہداری منصوبے کی، جس میں گوادر کو خصوصی اہمیت حاصل اور علاقے میں خوشحالی کے نئے دور کے آغاز اور مقامی افراد کو ترقی کے مواقع فراہم کرنے کے لیے متعدد اسکیمیں بھی جاری ہیں۔ خبرنامے میں اور خبریں شامل کرتے ہوئے بلوچستان کی بات ہو رہی ہے تو آپ کو بتائیں کہ وہاں پہلے انویسٹمنٹ اینڈ رجسٹریشن پورٹل کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ جام کمال خان نے اس کا افتتاح کیا۔ اسی بارے میں رپورٹ کر رہے ہیں کوئٹہ سے وقار احمد۔ پورٹل کے آغاز کے بعد ملکی اور غیر ملکی سرمایہ کار ون ونڈو آپریشن کے ذریعے کمرشل اسٹیبلشمنٹس، فیکٹریز اور دیگر بزنس وینچرز کی آن لائن رجسٹریشن کروا سکیں گے۔ انویسٹمنٹ کانفرنس سے وزیر اعلیٰ جام کمال خان کا کہنا تھا کہ صوبے میں سرمایہ کاری کے وسیع امکانات موجود ہیں۔ حکومت انویسٹرز فرینڈلی پالیسی کو فالو کر رہی ہے۔ ہماری کوشش بلوچستان میں سرمایہ کاری کا فروغ ہے۔ لیکن بلوچستان میں بہت اپرچونیٹیز ہیں اور یہ اپرچونیٹیز صرف بلوچستان کے انویسٹرز کے لیے نہیں ہے، باہر کے انویسٹرز کے لیے بھی ہیں، لیکن یہ بیسک میکانزم طریقہ کار سے کبھی آپ ان کو ایکسپلوئٹ نہیں کر سکیں گے۔ ہمیں اپنے وے آف بزنس میں بڑا امپروومنٹ لانا پڑے گا، ویلیو ایڈیشن پہ بڑا کام کرنا پڑے گا۔ کانفرنس سے راولپنڈی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کے صدر ناصر مرزا، بورڈ آف انویسٹمنٹ بلوچستان کے CEO سعید سرپرہ اور دیگر نے مائنز اینڈ منرلز، اسپیشل اکنامک زون اینڈ انڈسٹریل اسٹیٹ، لائیو اسٹاک، توانائی اور دیگر شعبوں میں سرمایہ کاری کے امکانات پر روشنی ڈالی۔ بلوچستان میں انویسٹمنٹ پورٹل کا آغاز ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ پورٹل کے آغاز کے بعد سرمایہ کار ون ونڈو آپریشن کے ذریعے اپنی تمام بزنس کی رجسٹریشن آن لائن کروا سکیں گے۔ وقار احمد، PTV نیوز، کوئٹہ۔ ناظرین، شہریوں کو خدمات کی بروقت فراہمی یقینی بنانے کے لیے خدمات کمیشن خیبر پختونخوا نے اہم کردار ادا کیا ہے۔ پبلک سروس ڈے ایوارڈز کی تقریب کا احوال ہمیں بتائیں گے شاہ رخ شفیع۔ شہریوں کو بہترین خدمات کی فراہمی تحریک انصاف کے منشور کا اہم حصہ رہا ہے۔ قابل ستائش کارکردگی دکھانے والے افسران کے باعث خیبر پختونخوا میں خدمات تک رسائی کے قانون سے شہریوں کو مقررہ وقت میں حکومتی خدمات کے حصول میں آسانی ہوئی ہے۔ فوکس جو ہے وہ عام آدمی ہے کہ عام آدمی کی جو ہے وہ زندگی جو ہے وہ آسان بنے، اس کو جو سہولتیں ہیں وہ بغیر کسی مشکل کے، بغیر کسی تاخیر کے ملیں، اور یہی پرائم منسٹر کا ویژن اس وقت بھی تھا اور ابھی بھی ہے۔ بہت افیکٹو ایک میکینزم بنایا گیا ہے۔ اوور دا پیریڈ RTS اس کی کیپیسٹی بھی بڑھ رہی ہے، اس کا اسپیکٹرم بھی بڑھ رہا ہے، اور اینڈ رزلٹ آؤٹ کم کیا ہے؟ آؤٹ کم یہ ہے کہ لوگوں کو فیسلٹی جو ہے وہ بہتر طریقے سے مل رہی ہیں۔ اس کا بڑا مناسب رول ہے اور بڑا ایکٹیو رول ہے۔ پبلک سروس کے ان ایریاز کو مانیٹر کر رہے ہیں۔ اگر کہیں پہ دیر سویر ہونی ہے اور کہیں پہ غلطی ہونی ہے اور کہیں پہ ویلفل ڈیفالٹ ہونا ہے تو ہم اس کے خلاف پروسیڈ کریں گے۔ خیبر پختونخوا میں عوام کو RTS کمیشن کے تحت ڈومیسائل کا اجرا، وراثتی انتقال کا اندراج، FIR کا اندراج، شناختی کارڈ اور ڈرائیونگ لائسنس کے حصول سمیت 43 بنیادی خدمات بروقت فراہم کی جا رہی ہیں۔ ہمارا کام یہ ہے کہ اگر وہ سروس پرووائڈنگ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ڈیلے ہوتا ہے اس کے لیے RTS بنا، تو وہ ایک واچ ڈاگ کا رول ہے ہمارا۔ اس قانون کا بنیادی مقصد صرف یہ تھا کہ عوام کو ٹائم باؤنڈ پبلک سروس ڈیلیوری کو یقینی بنائی، تو اس کو ایک اکاؤنٹیبل، ٹرانسپیرنٹ اور ٹائملی انداز میں یہ سروس ملے۔ عوام کو فراہم کی گئی سہولیات کے متعلق اگر کسی بھی قسم کی شکایت ہو تو خدمات کمیشن خیبر پختونخوا کی ہیلپ لائن 1800 پر شکایت کا اندراج کروایا جا سکتا ہے۔ قابل ستائش کارکردگی دکھانے والے افسران کو کیش پرائز اور ایوارڈ سے بھی نوازا گیا۔ عوام کو بہترین خدمات کی فراہمی کرنے والے افسران کے لیے ایوارڈ کی یہ تقریب KPK حکومت کی جانب سے خوش آئند اقدام ہے۔ شاہ رخ شفیع، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، بھوربن۔ ناظرین، ایک افسوسناک خبر شامل کرتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ ہاکی کے نامور کھلاڑی اولمپئن نوید عالم انتقال کر گئے۔ وہ کینسر کے عارضی میں مبتلا تھے۔ ان کی نماز جنازہ اب سے کچھ دیر بعد رات 10 بجے شیخوپورہ اسٹیڈیم سے ملحقہ ہاکی گراؤنڈ میں ادا کی جائے گی۔
نوید عالم 1994 میں ورلڈ کپ جیتنے والے قومی ہاکی ٹیم کے اہم رکن تھے۔ مرحوم نے پاکستان کی طرف سے چیمپئنز ٹرافی اور اولمپک گیمز میں بھی حصہ لیا۔ انہوں نے چین اور بنگلہ دیش کی ہاکی ٹیموں کی کوچنگ بھی کی۔ پاکستان حکومت کی جانب سے انہیں پرائڈ آف پرفارمنس بھی دیا گیا۔ ہمارے نمائندے اسلام غازی اس وقت اولمپئن انجم سعید کے ہمراہ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ جی بالکل، سابق اولمپئن نوید عالم جو کہ آج کینسر کے مرض کے باعث انتقال کر گئے تھے، ان کی میت نماز جنازہ کی روانگی کے لیے اب سے کچھ دیر کے بعد انہیں شوپرا کرکٹ اسٹیڈیم لے جایا جائے گا، جہاں ہاکی گراؤنڈ ہے، وہاں پر ان کی نماز جنازہ ادا کی جائے گی۔ نوید عالم بطور انسان اور بطور ایک ہاکی کے کھلاڑی کیسے تھے، ان کی پاکستان ہاکی کے لیے کیا خدمات ہیں، میرے ساتھ ہاکی کے سابق اولمپئن انجم سعید موجود ہیں۔ بہت اچھے بڑے شفیق انسان تھے، چھوٹے بھائیوں کی طرح تھے ہمارے۔ 94 ورلڈ کپ میں بڑا اہم کردار جیتنے میں انہوں نے ادا کیا۔ اس کے بعد انہوں نے 95 چیمپئنز ٹرافی کھیلی، 96 اولمپکس میں بھی شمولیت کی۔ نوید عالم یقیناً پاکستان ہاکی کا ایک بہت بڑا اثاثہ تھے، جن کی خدمات تا دیر یاد رکھی جائیں گی۔ جی ناظرین، آپ کو آگاہ کریں کہ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر اضلاع میں مطلع جزوی ابر آلود رہنے کے علاوہ کشمیر، پنجاب، خیبر پختونخوا، اسلام آباد، گلگت بلتستان، بلوچستان اور سندھ میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کی توقع ہے۔ اس دوران اسلام آباد، پنجاب، کشمیر اور خیبر پختونخوا میں چند مقامات پر موسلادھار بارش بھی متوقع ہے۔